का शहर। आज बैंगलोर के वसंत नगर स्थित डॉक्टर BR अंबेडकर भवन में छात्रों के सुनहरे भविष्य को तराशने के लिए एक बेहद सफल और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हां, रिबात एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और सैयदा जैनब एजुकेशन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आज आयोजित हुई फ्री करियर एंड लीडरशिप वर्कशॉप सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य युवाओं के भीतर छिपी सफलता और नेतृत्व क्षमता को जगाना था। इस कार्यक्रम में देश के जाने माने मार्गदर्शकों ने हिस्सा लिया। दिल्ली से आए FRF के संस्थापक डॉक्टर फजलुल्ला चिश्ती, प्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर इंदु वेणुगोपाल, DSF के संस्थापक डॉक्टर सैयद मुजम्मिल अहमद और वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर रफीक अहमद ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और छात्रों को सफलता के कई गुरु मंत्र दिए। इस 100% फ्री वर्कशॉप में आज के दौर के सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। वर्कशॉप के दौरान छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI अवेयरनेस, लीडरशिप क्वालिटीज, करियर गाइडेंस, स्किल डेवलपमेंट और नए जमाने में रोजगार के अवसरों के बारे में विस्तार से जागरूक किया गया। साथ ही जरूरतमंद छात्रों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की भी जानकारी दी गई। वर्कशॉप में आई PU और डिग्री के छात्रों ने कहा कि इस तरह की आयोजन उनके करियर को सही दिशा देने में मील का पत्थर साबित होते हैं। आयोजकों का कहना है कि शेप योर फ्यूचर बिकम अ लीडर की इस नारे के साथ शुरू हुई ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी ताकि बैंगलोर का युवा हर क्षेत्र में कामयाबी का परचम लहरा सके। Needs knowledge, needs people to drive that. You cannot develop one product and then leave it as it is. Then you can see what is the kind of opportunity that is available. Unfortunately, our community in particular is not able to explore those opportunities. I was in the same place where you are today. In education, even I used to dream a lot, but the dream remains as a dream unless you do not put it into reality. I had the same challenges, I had the same difficulties when I started my career. I was also a student. I did not have any financial help. Earlier, at least today, we have got various other opportunities where government schemes are there, and also banking institutions are there which are coming forward to help each and every person. And there are venture capital funds. Unfortunately, in my time, all these opportunities were not accessible to me, but still we struggled and made sure that I started my entire career after doing my engineering as an entrepreneur. I started with developing products in electronics, and in a matter of 1 year, I had more than 200 people working in my company. We were manufacturing power supplies, and after developing power supplies, I got married in 97. ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದನೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮುಂಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಉಳ್ಳವರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮುಂಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ರೂಪಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವತಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾವು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿದಾವೆ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ CBSE ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ. 304 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಮೊದಲಿದ್ದವು. ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಸಿನಾರಿಯೋ ಇದು. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 30 ರಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 6th to 10th ಅಂಡ್ PU. ಹಾಗೆ 29 PU ಕಾಲೇಜ್ ಇದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಭವನದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತರಬೇತಿ, RRB ತರಬೇತಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟ್, JEE, IIT ಮತ್ತು KSET ಇಂದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದಿವಿ ನಾವು. ಈ ನೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ, KSET ಮುಖಾಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ವೆಟನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ KSET ಇಂದ ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೋ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಫೀಸ್ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಆರ್ 4 ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಮೆಡಿಕಲ್. ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ಸ್ ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ NRI ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇದೆ, 27 ಲಕ್ಷವರೆಗಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಆ ಫೀಸನ್ನು ನಾವು ಬಡ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಕ್ಕಳು ಭರ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು KE ಇಂದ ನೀಟ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಿದಾರೋ 50% ಆಫ್ ಫೀ ಆರ್ ಅಪ್ ಟು 5 lakhs per year. A lot of women, girls sitting here in the audience to listen about what is next, right? So I'm assuming that all of you have finished your graduation or post-graduation. Yes? Okay, so I can't hear anything. So if you want to kind of raise your hands and say something, we can talk. So today we are going to talk about, I've been asked by Atik to talk about a topic which is about building your brand image. Right? So before I get into that, I would like to know how many of you all know about what is personal branding, or what does it mean to build a brand image? Anybody? Okay, so looks like this is going to be more of a monologue from my end rather than I'm getting to hear from you as well. So let me start with what Mr. Atik has been talking about before me, and then the other speaker as well, about the success, right? So everyone of us want to be successful, right, in life, in whatever position that we are in. Even if it's a child, or if you are somebody who is pursuing your education, or you're finished with your education and starting to look for a job, everybody wants to be successful in their own space, correct? So as a child, it's about okay, the child is trying to stand up and walk. So what would be the success for the child? When will the child be really happy? Until then they'll be struggling to stand up, fall, and again stand up and fall. And the moment that they take the 2 steps, it's exciting for the child, right? So that is success for the child. When it comes to schools and colleges, when the children start studying, getting to start their education, success is about getting good marks, right? Success is about going to your next level, clearing the competitive exams, and getting into the interview stage where you're looking for a job, or probably getting more and more skills developed as much as possible when you are in your schools and your colleges, right? Based on the opportunities that comes across to you. So success is very subjective. But here there was a story which he was talking about, the Siemens project that he got, and where there was a person who was supposed to come and do the training. He just absconded, and then he had to take up the challenge of doing it. So what do you think success defines there, and where does this personal branding come in those places? कनाडा पढ़ना बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली शोई नगर के अंदर कनाडा अच्छा बात रहे तो तुम्हें मुसलमान है कर पूछते हमना फराक हो तो उनको क्या दिमाग में क्या बढ़िया तो मुसलमान कनाडा नहीं आता, नहीं कनाडा लिखना पढ़ना आना है, हमना बहुत जरूरी है। मैडम के ऑफिस को गए तो
पूरा तुम्हें कन्नड़ा में बात कर, पूरा डॉक्यूमेंटेशन कन्नड़ा में होता है। उसके से कन्नड़ा लिखना सीखना बहुत जरूरी है। हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर कन्नड़ा में बोल रहे थे कि गवर्नमेंट से क्या क्या स्कीम तुम्हारे वास्ते ही। अभी मैडम एक 5-10 मिनट बात करती है, इंशाल्लाह मैडम बहुत हेल्प करती। मैं भी उनके ऑफिस को जाकर हूँ, उनके ऑफिस को जाओ, जो बच्चे अच्छा पढ़ना लिखना चाह रहे हैं, कुछ जिंदगी में बनना चाह रहे हैं, उन बच्चों को गवर्नमेंट से, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से क्या क्या सहूलतें हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो पूरा अच्छा पढ़ने के बच्चे को पैसे की जरूरत नहीं है। मैं गवर्नमेंट उर्दू स्कूल में पढ़ा, मैं कहां पढ़ा? गवर्नमेंट उर्दू स्कूल में 7वीं क्लास तक पढ़ा, 8वीं क्लास से इंग्लिश मीडियम, फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा। उसके बाद में मैं ग्रेजुएशन को मैं प्राइवेट में गया हूं, आज मैं पीएचडी करके हूं, 2 हॉस्पिटल से मेरे। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा तो बच्चा कामयाब नहीं हो सकता क्या? अरे तुम्हें सब गोल्ड रह सका जी, सुनना रह सका जी, क्या सुने? यहाँ कहते हैं कि गवर्नमेंट कन्नड़ा स्कूल में पढ़को है सही। आई थिंक मैडम गवर्नमेंट कन्नड़ा स्कूल देखो, गवर्नमेंट कन्नड़ा स्कूल देखने के बाद मालूम हुआ कि हमारे लड़कियां आगे आना चाह रहे हैं जिंदगी में। ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लड़के अभी नींद में है, तो उनको नींद से जगाना है, अभी मेजर काम वो है। तो चलो अच्छी खुशी की बात है, अब लड़कियां इतने सारे यहाँ आए, एक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। क्योंकि मैं बीइंग ए लेडी, अब मैं जैसा आ गई हूँ, आप भी आगे आना, आगे लाने के लिए मैं क्या करना है, मैं भी वही सोच रही हूँ। पहली बात, आप जानते हैं मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, माइनॉरिटी ज्यादा स्कीम्स है आपके यहाँ, आप सब भी जानते होंगे शायद। मैं मेरा एक प्रोग्राम क्या करना चाह रही हूँ, मैं अभी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एज ए डायरेक्टर होके मैं स्किल डेवलपमेंट का मैं इसके बारे में सोच रही हूँ। तो उसके सिलसिले में मैं इसी महीने में जुलाई 18 को हुबली में एक बड़ा प्रोग्राम वर्कशॉप हमें कंडक्ट कर रहे हैं। उस प्रोग्राम में हमें क्या कर रहे हैं, अब एज ए गवर्नमेंट हम ना थोड़े रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, थोड़े प्रोग्राम्स हमने करने नहीं होता, हमें प्रायर परमिशन फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमारा एक्शन प्लान बना लेके वो एक साल का बने रहता, उसमें हमें नया सा नहीं डालने आता। इसलिए नया समय डालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, CSR फंड्स लाने के लिए मैं अब ऑलरेडी कोशिश जारी है मेरी। तो अगस्त 15 से मैं वो एक प्रोग्राम स्टार्ट करना चाह रही हूँ। आउट ऑफ 31 डिस्ट्रिक्ट में जो कर्नाटका में है, उसमें एक सभी डिस्ट्रिक्ट में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोल के करीब एक मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को मैं वो ट्रेनिंग देना चाह रही हूँ। उसमें 10th फेल होंगे, पास होंगे, या PUC पास होंगे, या तो डिग्री होने के बाद में भी आप ले सकते हो, फ्री का रहता हो कोचिंग। उसमें है ना, हम लोग इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट होंगे, अभी बोले कोई AI इंजीनियर बनना चाहती हूँ बोल के, क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत जरूरी है, सिर्फ हमें फंक्शन काटने के लिए नहीं रहना है ना, तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनको स्किल ज्यादा ट्रेनिंग जरूर है, वो मैं है ना उनको देने की कोशिश करूंगी। तो उसका हम सोशल मीडिया में भी आपको हमें वो उसका प्रोपेगेंडा करेंगे, उसका आप सभी लोग, आप जितने लोग यहाँ पे हैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, जितना से आप 10,000 होंगे या 20,000 होंगे, सभी बच्चों को हमें ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, फ्री का रहता है वो। तो वो ट्रेनिंग आप सभी ले लेके जिंदगी में आगे आना चाहिए। सो अभी सर बोल रहे थे एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन मैं बोलती हूँ, एजुकेशन बहुत अब के इसमें एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन नहीं है आपके पास, आपको कोई भी इज्जत नहीं देता, घर में भी इज्जत नहीं देता। एजुकेशन है तो इज्जत है, वो इट्स लाइक एन ओपन वो उसके वजह से हमें कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में। और लड़कियां ये मत समझना कि चलो कुछ के घरों में क्या रहता है, आगे डिग्री होने के बाद या तो PUC होने के बाद शादी कर देते हैं। नहीं बाप, आजकल का माहौल बराबर नहीं है, बच्चियां बाहर जाने से कुछ हो जाता है, ऐसा डर के शादियां कर देती हैं। तो मैं क्या बोलती हूँ, कितना एजुकेशन आपको होता है, अगर डिग्री पाना है या तो PG पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, सभी करो, उससे हमें एजुकेशन चलो। जिंदगी में सिर्फ एक शादी, लड़कियों को शादी करना वो टारगेट मत रख लो, क्योंकि आप अच्छा पढ़ो, अच्छा पढ़ने के बाद डिग्री ले लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। सिर्फ अभी हमें पढ़ना, एजुकेशन लेना, डिग्री पाना, हम नौकरी करना, पैसा कमाना नहीं रहता हो। तो आप आफ्टर शादी भी आप एजुकेशन लेते हैं, बच्चों को भी अच्छा सिखा सकते हैं, बच्चों को अच्छा कल्चर सिखा सकते हैं, अच्छे बुरे की फर्क सिखा सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन इंसान को इंसान बनाता है, अच्छे बुरे की फर्क सिखाता है वो। इसलिए एजुकेशन पहले पालो। मेरा भी, मैं बोलती हूँ, मैं बड़े शहर से नहीं, मैं लड़की, मैं एक विलेज में, मेरे अब्बा हेल्थ डिपार्टमेंट के है, मैं एक विलेज में, आप सुने होंगे हानगल, हावेरी डिस्ट्रिक्ट सुने हैं ना, 31 डिस्ट्रिक्ट में हावेरी भी एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक तालुका हानगल के तालुका में एक अक्कियालूर गांव है, वहां पे मेरा प्राइमरी एजुकेशन सभी हुआ 6 से 10 तक। 10th के बाद मैं हावेरी आई, हावेरी में BA मेरा पहले से क्या था, मैं लड़कियां, इसलिए मैं मेरा खुद का ये बोल रही हूँ,
मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, मैं कैसा ऑफिसर बनी बोलती हूँ। मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, मैं एक फिल्म देखने के लिए अक्यालूर में छोटा सा थिएटर था, अब्बा के साथ में गई। तो उसमें मेरी फैमिली सभी, अम्मी अब्बा, मेरे भाई बहन, हम 3 बच्चे थे, तो सभी लोग गए थे। वो एक ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು फिल्म देख रहे थे हमें। उसमें एक वो हीरोइन रहती है सरिता बोल के, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहती है। तो उसका देख के मैंने मेरे अब्बा को बोली, अब्बा मैं आगे मैं जिंदगी में यही बनना चाहती हूँ बोल के। अब्बा भी मेरे थोड़ा उसको वो बात को ऐसे इजीली ले लिए, सीरियसली ले ले। तो मैं, क्योंकि मैं स्टडीज में थोड़ा ब्राइट थी, तो मैं 9th में थी, 9th स्टैंडर्ड में थी, तब एक तरंगा बोल के आर्टिकल आया था। तरंगा सुने होंगे ना आप, सुधा तरंगा आर्टिकल, ये मैगजीन्स रहती ना, उसमें एक आर्टिकल आया था ಶಿವರಾಮ್ बोल के उन्होंने ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ कन्नड़ मीडियम IS पास हुए थे फर्स्ट कैंडिडेट बोल के। तो उनका आर्टिकल देख के मैं पढ़ के बहुत, उसके से बहुत मुझे अच्छा लगा था। अब्बा को बोली, अब्बा मैं भी ऐसा बनना चाहती हूँ बोल के। अब्बा क्या बोले, उन्होंने एड्रेस दिए थे उसमें, तो एड्रेस को एक लेटर लिखे, तो मेरी बच्ची भी बनना चाहती है, क्या पढ़ना है इसे आगे बोल के। तो उन्होंने डिटेल्स डाले, उन्होंने भी रिप्लाई दे दी, वो लेटर मेरे पास अभी भी है। कम हो रहा है, एक चीज पर फोकस करने की जो कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आपके जनरेशन में जो है वो आगे वाली जनरेशन में और कम हो जाएगी। एंड पीपल हु आर बिहाइंड दिस सोशल मीडिया टीम, दे आर वेरी टॉप ग्रेड सोशल साइंटिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। दे नो अ स्टूडेंट कैन नॉट फोकस फॉर मोर देन 2 minutes, so they have made it rule that if you want to brand your make a brand of your product, your video must not be more than of 2 minutes. 2 मिनट बाद बच्चे उछल रहे हैं। अब आप लोग जस्ट रिकॉल कीजिए, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू रेड अ कंप्लीट आर्टिकल। न्यूज़पेपर में सिर्फ हेडिंग पढ़ते हैं आप, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल कंप्लीट कब पढ़ा था याद कीजिए। या जो लेंदी आंसर्स होते हैं हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, वो कितना आप पढ़ते हैं। ओवर द टाइम जो जनरेशन आ रही है वो उसके में लेंदी रीडिंग हैबिट्स कमजोर हो रही है, and that is being reflected in the exams which you are passing. जो लोग भी IAS क्लियर कर रहे हैं, आप उनके इंटरव्यूज पढ़िए, सुनिए। वो बोलते हैं सबसे पहला हमने अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखा, न्यूज़पेपर से दूर नहीं रखा, दोनों में फर्क है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स जानना है, आपको दुनिया में हमारे देश में क्या हो रहा है जानना है। लेकिन आपको यह जानने की जरूरत नहीं है किस हीरो ने किस हीरोइन से शादी की, किसका डिवोर्स हो गया, किसकी नई फिल्म कौन सी आ रही है, अगला मैच किसका हो रहा है। इट इज ऑफ नो यूज, दिस इज कॉल्ड फिल्टरिंग। अगर आप फिल्टरिंग नहीं सीखेंगे आप लाइफ में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बिकॉज आपको जस्ट किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर 4 लाख पर मंथ का पैकेज नहीं कमाना है। यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। व्हाट डज दिस टर्म सक्सेसफुल मीन इन इस्लामिक पर्सपेक्टिव? इस्लाम जब कामयाबी का तस्वुर देता है तो वो सिर्फ ये नहीं कहता कि आप 4 लाख 3 लाख 2 लाख रुपया कमा ले, ये नहीं है। आपको दूसरों की मदद करने वाला बनना है। हुजूर ने फरमाया खैरुन नास यनफउल लिन्नास, the best among you are those who are most beneficial to the people. तो इस्लाम जो कामयाबी का तस्वुर देता है कि आपको ऐसा बनना है कि आप खुद अपने आप की भी मदद कर पाएं और दूसरों की भी मदद कर पाएं। इसीलिए हुजूर ने फरमाया अ गिविंग हैंड इज बेटर देन अ रिसीविंग हैंड। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा है। आपको देने वाला बनना है। या किसी को इल्म दीजिए, किसी को हिकमत दीजिए, किसी को दौलत दीजिए, ये देने वाला बनना इस्लाम में ये कामयाबी का तस्वुर है। आप बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, किडनी चुरा रहे हैं। आप बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, लोगों के जो है ईमेल हैक कर रहे हैं, बैंक अकाउंट हैक कर रहे हैं। ये इस्लाम में कामयाबी का तस्वुर नहीं है। इस्लाम में कामयाबी इज लिंक्ड विद एथिक्स, जिसको अखलाक बोलते हैं। अगर आप में एथिक्स नहीं है तो इस्लाम उसको कामयाबी नहीं मानता है। I'm the chief advisor for Industry Ministry, Government of Karnataka, and I am the Finance and Projects Director at Khaja Banda Nawaz University, Khaja Education Society, and I am an alumni from IIM Bangalore, and I have my own group of companies. I am the chairman for Jilani Group.
Yes, Bangalore में I have come in 91 at the age of 1991 and ऊपर वाले की ताकत, माँ बाप की दुआ, दोस्तों की मेहनत. Without taking 1 rupee, I have built an organization which is in thousands of crores. This is a fact. And I still remember when I was in school में रहने के टाइम पे first 2 टेस्ट रेड मार्क, मिड टर्म 50%, फिर 2 टेस्ट रेड मार्क, फाइनल एग्जाम 60%. मेरे एक चाचा मेरे टीचर थे और मेरे अब्बा, ये 2 छोड़ के सब गुस्सा करते मुझे. When someone asks गुस्सा क्यों नहीं करते, तो अब्बा बोलते उन्होंने पढ़ा तो मार्क्स लाता, पढ़ा नहीं तो कहां से मार्क लाता, सुबह से शाम तक खेलते रहता. बट देयर वाज अ पॉइंट व्हेन इट केम, एक सोच है, सोच में चेंज हो गई कि मेरी ताकत दूसरी जगह जा रही. मुझे खुद जब 15-16 साल में आ गए तो सोच आई कि वो ताकत मैं कहां डालूं. जब एजुकेशन में डाले तो एक नहीं 16 गोल्ड मेडल, यूनिवर्सिटी रैंक्स, स्कॉलरशिप्स एट IIM, स्कॉलरशिप इन ग्लोबल स्कूल्स अब्रॉड. तो सोच, जो एक सोच है वो सोच को बदलना चाहिए. और आज मैं हर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड घूमता हूं, सब जगह देखता हूं, मगर सबसे स्लो मेरी कौम यहां की है, हिंदुस्तान की. अभी जितने भी लोग थोड़े हैं, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि हम सोना कम करें, हर बार यंगस्टर्स को इंटरेक्ट करें और यंगस्टर्स में जिंदगी बिताएं. अभी हम तो 55-56 में हो गए, बट आज का मुसलमान का लड़का बहुत तकलीफ होती है. एक एग्जांपल देता हूं, टैक्सी में बैठता हूं, जाते रहता हूं, जैसे ही वसंत नगर क्रॉस हुआ, इस तरफ आया तो टैक्सी वाला बोलता, सर नोड्री सर, ಅವ್ನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲಂಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸರ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸರ್, ಅವ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಚಲಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಮೀ, ಎಲ್ಲ ಸಾಬರ್ ಹುಡುಗರು ಸರ್ ಇವರು, बिट्टी रोड बिट्बिट्टारे, तो तकलीफ क्या होना, हमने चुप बैठते हैं. वापस आने के बाद उतरने के टाइम पे बोलता हूँ नानु साबी पप्पा, तो वो 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ तगो, ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು. ये दिस सर बोले, डॉक्टर साहब बोले ना कि सब झड़ जाते हैं डिग्री को आने तक. सही है, बिल्कुल सही है. आते 100 बच्चे आते तो डिग्री आने तक 3%. किस लिए? बिकॉज हम सीनियर लोग उस पे फोकस नहीं कर रहे. हम तो सो गए 70 साल हिंदुस्तान की आजादी के बाद, अब क्या कर रहे हैं मालूम नहीं. और जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, जो भी लड़कियां हैं या जो भी यहाँ पे है, कर्नाटका के कौन है भाई, हाथ उठाओ. कर्नाटका के, ओके हाथ रखो. कन्नड़ा कितनों को आता है? पूरों को नहीं आता. ये देखो, उधर हाथ नहीं है, इधर हाथ नहीं है. एक चीज मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं. न्यूरॉन्स 0 to 7 इयर्स में बिल्ड होते हैं बच्चों को. न्यूरॉन्स जो है जॉइंट्स होते हैं, जहां पे लाइब्रेरी होती है, हमारा पूरा नॉलेज बैठता है. 0 to 7 इयर्स में न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बस है कि हम पढ़ भी लेते हैं, शादी भी करते हैं, नौकरी करते हैं, घर करते हैं, रिटायर्ड होते हैं, जिंदगी जी लेते हैं. वो नॉर्मल लाइफ होती है. नॉर्मल लाइफ हम किसको बोलते हैं? सब गाय भैंस बकरी के साथ हम जी लेते हैं. अगर हमारे को वी हैव टू लिव एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड. I was so happy, Maulana, he is a professor and he has come like a sahib. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो अंबेडकर भवन वसंत नगर में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे,
हमारे डॉक्टर अतीक साहब जस्ट मेरे को 15 दिन पहले एक इनविटेशन दिए थे, ऐसा एक हमारे कौम के बच्चों को एक कैरियर काउंसलिंग का, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में बात करना है बोल के। तो एक्चुअली आज बहुत सारे लड़के आए थे। माशाल्लाह हर जगह क्या है, हमारे कौम के लड़कियां बहुत आ रहे हैं, लड़के नहीं आ रहे। तो वो एक अफसोस क्या है बोले तो हमारे कौम के अंदर क्या हो रहा है, आज फ्यूचर में एक मिसमैच हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है। क्योंकि आज एक 100 बेटियां, हमारे 100 लड़कियां ग्रेजुएट बने तो एक 30-40 लड़के खाली ग्रेजुएट्स बन रहे। उसके लिए मेरा रिक्वेस्ट क्या है कि तो हर माँ बाप से अपने मर्द बच्चों को भी अच्छा पढ़ाओ, क्योंकि मर्द बच्चा अच्छा पढ़ा तो क्या होता है, घर का जो फ्यूचर में पूरी घर की जिम्मेदारी उठाता है। भाई को बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ने के बाद में क्या है, वो बच्चे और एक घर को जाकर उनके शोहर को, उनके सास ससुर अच्छा देख लेते। माँ बाप को अपना बेटा अच्छा देख लेना का तो अपने बेटे को मिनिमम ग्रेजुएट बनाना बहुत जरूरी है। जैसा हमारा मर्द बच्चा भाई को बच्चे पढ़ रहे हैं, वैसा मर्द बच्चा में पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो सोसाइटी में मिसमैच होता है, बैलेंस नहीं रहता, शादियां के वास्ते बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि लड़की ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट लड़के नहीं मिलते। तो मेरा रिक्वेस्ट है माँ बाप से सबसे भी कि लड़कों को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देखो, लड़कों को भी ग्रेजुएट बनाना है, लड़कों को भी एक रोल मॉडल बनाना है। हमारे कौम के लड़के भी जो है लड़कियों से क्या भी कम नहीं बोल के प्रूव करना है। तो आज का जो प्रोग्राम जो था, ये प्रोग्राम में क्या है, पीयूसी एंड ग्रेजुएट डिग्री करने के बच्चों को बुला के फर्दर क्या करना है तुम्हें, तो उसके लिए आज हमारी बात रही कि हमारी हर बेटी हर बेटे को फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कन्नड़ा लिखना पढ़ना आना है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें कर्नाटका में रहने वाले कन्नड़ा बात नहीं करे तो, कन्नड़ा लिखे नहीं तो पढ़े नहीं तो क्या होता है, हमें फ्यूचर में बहुत वाक़ा होता है। पॉइंट नंबर 1 वो आज हमें बच्चों के दिमाग में डाले। पॉइंट नंबर 2 क्या डाले कि 5-6 साल अच्छा पढ़ लो, 50 साल लाइफ एंजॉय करो। तो उसका असर 5-6 साल कुर्बानी देना, जिंदगी में बगैर कुर्बानी के क्या भी हासिल नहीं कर सकते, कुर्बानी देना। तो उसके बाद में तीसरा जो है, जो अच्छा पढ़ने की जो लड़का है या लड़की है, इन लोगों को पैसा होना जरूरी नहीं है। आज हमें तब गवर्नमेंट उर्दू स्कूल में मैं पढ़ाई किया, बहुत सारे लोग आज वो यास्मीन मैडम आए थे, स्टेट के माइनॉरिटी डायरेक्टर हैं, उन्होंने गवर्नमेंट कन्नड़ा स्कूल में पढ़ाई करे। यानी कि पढ़ने के लिए बहुत पैसा होना जरूरी नहीं है, पढ़ने के लिए जज्बा होना जरूरी है, एक चैलेंजिंग माइंडसेट रहना जरूरी है, एक चैलेंजिंग एटीट्यूड रहना है जिंदगी में कामयाब होने के वास्ते, वो बहुत जरूरी है। उसके लिए पूरे बच्चों को इतना ही बोल रहे थे, बेटा तुम्हें मिनिमम तुम्हारा एजुकेशन जो है ग्रेजुएट होना है, अच्छा पढ़ना है, माँ बाप का सहारा बनना है, अपने खानदान का सहारा बनना है, हमारे मुल्क को आने वाले दिनों के अंदर सुपर डेवलप कंट्री करना है। कि तो हमारे गरीब बच्चे, मुस्लिम बच्चे, माइनॉरिटी बच्चे, दलित के बच्चे, ओबीसी के बच्चे मेन स्ट्रीम में आना है। मेन स्ट्रीम में आपको हमें इंशाल्लाह सबके साथ इंसाफ करना है। उसके लिए हमें सबके साथ इंसाफ करने के लिए हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नॉलेज होने के लिए कुर्बानी देना बहुत जरूरी है, कुर्बानी दे तो हमें इंशाल्लाह कामयाब होते बोल के एक मैसेज पास करें। अस्सलामु अलैकुम। पहली बात, मैं रिबात एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आज इन्होंने ये अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर करियर गाइडेंस एंड लीडरशिप स्किल्स के लिए करे हैं अंबेडकर भवन में। और आज प्रोफेसर्स पूरे इंडिया के, थोड़े ऑल इंडिया दिल्ली से प्रोफेसर्स आए हैं, और यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो सब आके कौम के बच्चों को डायरेक्शन देने के लिए, करियर गाइडेंस के लिए आज प्रोग्राम दिए हैं। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि यंगस्टर्स को 2-3 चीज़ें बोलता हूँ। एक है, सोशल मीडिया से बचो, सोशल मीडिया से बचो। हमें 24 घंटे हर इंसान को मिलता है, 24 घंटे ये टाइम हम कैसे यूज़ करते हैं उस पे हमारा सक्सेस और रिजल्ट आता है। इन इंग्लिश बोलते हैं सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना टाइम हम लगाते हैं सही चीज़ों में तो उतना सक्सेस रेट बढ़ता है। सोशल मीडिया से बचो, थोड़ा फिजिकल स्ट्रक्चर लाओ, थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या खेलना या रनिंग या बैडमिंटन, कुछ तो भी हर दिन के लिए एक आधा घंटा भी फिजिकल एक्टिविटी करो, ताकि थोड़े गुड केमिकल्स ब्रेन पे जाए, और थोड़ा करियर पे फोकस करो। एक कन्नड़ा में हमारे एक मास्टर बोलते थे, मैं रिपीट करता हूँ, मैं बल्लारी का हूँ, तो मास्टर बोलते, जिलानी नीनो लक्ष्मी हिंदे होगಬೇಡಪ್ಪ, सरस्वती ಹಿಂದೆ ಹೋಗು। ನೀನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂಚಲ, ಯಾರ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕೈಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ। ಸರಸ್ವತಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು, ಸರಸ್ವತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ। ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಫ್ರಮ್ our masters
from childhood, and we follow the same thing. इल्म के पीछे जाओ. Even हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही बोले कि इल्म आपको लेना है या सीखना है तो चीन को भी जा सकते हैं. This is there. तो हम इल्म को छोड़ के बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं. मेरा रिक्वेस्ट इतना है, हर फैमिली में कितनी भी मुश्किल हो, पढ़ाई के ऊपर फोकस दीजिए. क्यों बोले तो अभी परसेंटेजेस जो भी है, इट मे नॉट बी परफेक्ट. वी आर 15 to 16% इन द स्टेट. हमारे को माइनॉरिटी बेनिफिट्स होना, ये होना, वो सेकेंडरी है. वो सब पहली बात, हम फोकस पढ़ाई पे करें, इल्म पे करें. जब 100 बच्चे पढ़ने के लिए जब एक फर्स्ट स्टैंडर्ड में ज्वाइन करते हैं तो डिग्री होने तक खाली 2.5 to 3% बच जाते हैं. 2 या 3 बच्चे ग्रेजुएट बनते हैं. तो मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, आगे हिंदुस्तान को या आगे मुसलमान को या आगे कुछ एक लेवल पे ले जाना है तो हमें इल्म के आगे भागना है, इल्म के बराबर भागना है, इल्म के पीछे भागना है. जो करना है इल्म लो, पढ़ाई करो. आप पढ़े तो हर चीज पीछे आ जाएगी. दिस इज व्हाट आई कैन से. थैंक यू. आपका नाम आपको करूँ. मेरा नाम जिलानी है. मैं अभी चीफ एडवाइज़र हूँ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में. संपत्ति बोल के प्रोजेक्ट है. मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर का अलुमनी हूँ और हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी गुलबर्गा में फिनेंस एंड प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट करता हूँ. आज बेंगलोर में माशाल्लाह रिबात एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से एक मोटिवेशनल और एंकरेजिंग सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें पीयूसी के स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए सेशन था, जिसमें एजुकेशनल काउंसलिंग भी की गई और करियर काउंसलिंग भी किए गए. इसमें हर सेक्टर के लोगों ने शिरकत की. गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टर माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल डिपार्टमेंट की तरफ से शिरकत हुई. उन्होंने लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताया और इंडस्ट्री से जो है जिलानी साहब तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने गवर्नमेंट के क्या क्या इंडस्ट्री सेटअप करने में स्कीम है उसके बारे में बताया. फिर सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक श्रीमती इंदू राजन वेणुगोपाल साहिबा आई थी, उन्होंने सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया. और मुझे जो टॉपिक दिया गया था वो है ड्रीम बिग, अर्ली गोल एंड फोकस एंड परसिवरेंस फॉर सक्सेस. तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें उलमा ने भी शिरकत की, टीचर्स ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की, रिटायर्ड प्रोफेसर्स ने शिरकत की. एक अच्छा इनिशिएटिव है. मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसे बहुत से प्रोग्राम की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये रिपीट होगा. ये वन टाइम इवेंट नहीं होगा, ये बार बार होता रहेगा. इंशाल्लाह इससे एक चेंज हमको उम्मीद है कि आएगी. स्टूडेंट के लिए कैसे तरबियत देना है, क्या आपके अवेयरनेस से क्या फीस रहेगा? देखिए, स्टूडेंट की तरबियत एक अलग चीज़ है. तरबियत के लिए पेरेंट्स का भी रोल है, मेंटर्स का भी रोल है, टीचर्स का भी रोल है. हमने यहाँ पे मेंटरशिप की बात की कि हमने स्टूडेंट्स को बताया कि आपको क्लास 10th में ही डिसाइड करना है कि आपका लाइफ में फोकस क्या है. आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम होने चाहिए. अपने स्ट्रेंथ को किस तरह आप आगे सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हो मालूम होना चाहिए. वीकनेस पे कैसे ओवरकम करना है उस पर बताया हमने. और जब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है, फिक्स कर लिया है, तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए. लेंदी आवर्स होने चाहिए पढ़ाई के और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए. जो लोग लाइफ में कामयाब हो चुके हैं उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए. ये कुछ टिप्स हमने दी है और भी चीज़ें बताई हैं कि बच्चे किस तरह लाइफ में कामयाब हो सकें. बहुत सारी चीजें यू से लेके बहुत टेंशन में रहते हैं कि कोई कॉमर्स लेना है, कोई साइंस लेना है, जी. तो ये लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं सर. जी, इसकी काउंसलिंग क्लास 10th में होनी चाहिए कि स्टूडेंट जब क्लास 10th में हो तो वो देखे कि वो क्या ले सकता है और क्या उसका इंटरेस्ट है. अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनना है तो जाहिर सी बात है उसको LLB करना पड़ेगा. किसी को अगर IIT में इंजीनियर बनना है तो उसको जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स लेनी होगी. किसी को बहुत बड़ा एम्स में डॉक्टर बनना है तो उसको बायोलॉजी लेनी पड़ेगी. तो 10th के बाद क्या लेना है डिपेंड्स कि बच्चे ने 10th में अपना क्या गोल सेट किया है. इसके लिए मेंटर्स की ज़रूरत है. कम्युनिटी में जो लोग कामयाब हो गए हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है गिव बैक टू सोसाइटी वाले कॉन्सेप्ट को, गिविंग बैक द सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को रिवाइव कीजिए. और जो लोग भी कामयाब हो गए हम उनसे गुजारिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने जो आपको कामयाबी और सलाहियत दी है उसको कौम के बच्चे और बच्चियों तक पहुँचाया जाए.